Hello friend, I am Balwant Singh. I am assistant professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, IMS Engineering College Ghaziabad, which is affiliated with APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. And in the last lecture, we had discussed about the jet transform, and we also solved few numerical examples related to the jet transform. And along with the numerical analysis of jet transform, we also see the reason of convergence of the jet transform. In this lecture, we will see the some few properties of the jet transform, and so here we will discuss about the region of convergence for the jet transform. The property number 1 of the jet transform is the region of, suppose you have a signal x n and the jet transform of the x n is x z, then the region of convergence of x z consists of a ring in the jet plane centered about the origin. We know that we know the basic formula of the jet transform is x z is equals to summation n is equals to minus infinite to plus infinite x n z power minus n. If we put the z is equals to e r की power r into e की power j omega, then we will get this value. And if we take mod, then we will get this value, because mod e की power minus j omega become 1. Okay. So the ROC of the jet transform of x n consists the value of z for which x n r की power n r की power minus n is the absolutely summable, that is summation n is equals to minus infinite to plus infinite mod x n r की power n r की power minus n is should be less than infinite, and you can see that if you have a jet plane and this is the region of convergence, it may be inward or outward. Next property is the ROC does not contain any pole. Suppose x z is defined x z, if we take the jet transform of x n and it become x minus 1 divided by x minus 2 and x minus 3, then according to this property the ROC does not contain any pole. What is the pole? Pole is z is equals to 2 and z is equals to 3, means if we take ROC, it will not include 2 and 3. आपका ये इनरवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो, दोनों केसेस में होते हैं. वी विल सी in the few examples. Next property is if x n is of finite duration, then ROC is the entire plane except z is equals to 0 and z is equals to minus 1. To better understand, let us have a signal 1, 2, 3, 2, 3. Suppose this is the origin. If we take the jet transform of this signal, we will get 1 plus 2 z inverse, we put z की power minus 2 plus z square, sorry 2 z plus 3 z square, means if we put z is equals to 0, then because of this and this term we will get infinite, x z become the infinite, and if we put z because of this term and this term we will get x z infinite. So और इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू इसमें रखोगे तो आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, एक्स जेड की कुछ ना कुछ डिफाइंड वैल्यू आएगी. दैट्स वाई इफ एक्स जेड इज अ फाइनाइट ड्यूरेशन, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया 3, 2, 1 एंड 1 जो है ओरिजिन पे है एंड 2, 3, देन यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल आपका
पूरा इंटायर जेट प्लेन होगा, एक्सेप्ट हमको z इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू इनफाइनाइट नहीं लिखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की, इफ एक्स एन इज द राइट हैंडेड सीक्वेंस। इन दिस एग्जाम्पल, इन द लास्ट एग्जाम्पल, सपोज करते हैं हमारा सिग्नल 1 2 3 है, राइट हैंडेड सीक्वेंस, दिस इज एक्स एन, this is your right handed sequence, and if the circle is mod z is equals to r0, means if this is the z plane and this is r0, ठीक है, mod z is equals to r0 is in the ROC, then according to this property, all finite values of z for which mod z is greater than 0 will also be in the ROC. Okay. All finite value of z for which mod z is greater than R0 means like this manner will also be in the ROC. Next property, if xz is left handed sequence, means for property fifth, x n is equals to 1 2 3, this is the left handed sequence, and so according to this property, similarly mod z is equals to r0, then all values of z for which mod z should be should lie between 0 and r0, 0 and r0 means this is the 0 and this is the r0, means inner world, 0 and r0. And in the next property, इसी बात को आगे बढ़ाया गया है, if x n is the two sided sequence and if the circle mod z is equals to r0, जैसा हमने पहले माना है, in the ROC, then ROC will consist a ring of z plane that includes the circle r equals to 0. Okay. अब जैसे इन द लास्ट जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था, ये वाला, इसमें क्या कहा था आपने, एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0, यानी कि ये टू साइडेड सीक्वेंस था, यानी कि इफ एक्स एन इज द टू साइडेड सीक्वेंस, लेकिन ये फाइनाइट लेंथ की कहीं बात नहीं कर रहा, कुछ भी हो सकता है, टू साइडेड सीक्वेंस है, सपोज करते ये है, दोनों साइड है, 0 से लेके इधर भी है इधर भी है, तो इस केस में क्या कह रहा है, जब हम रीजन ऑफ, अभी एग्जांपल भी हम देखेंगे, ये आपका सपोज करते हैं R0 है, देन ROC विल कंसिस्ट ए रिंग इन द जेट प्लेन, मीन्स मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगा, कुछ आपका ROC डॉटेड लाइन इस तरह से आएगा, यानी R0 आपका जो सर्किल है वो इंक्लूड होगा, देखो ये R0 भी इंक्लूड है, ये आपका ROC है, हमने एग्जाम्पल भी किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, मीन्स इसके बीच में ए रिंग जनरेट करेगा, ठीक, लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था लेक्चर्स। इफ द एक्स जेड इज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन and it is rational, then ROC is bounded by poles or extend to infinity, means if we take the if we have a signal xn, discrete time signal xn, and we calculating the jet transform and the jet transform is rational, then ROC is bounded by poles or extend to infinity. You can see this property in any jet transform which have rational property. Next property is, उसी बात को आगे बढ़ाया गया है, if xn is right handed, if the xn is right handed, then the ROC in the region of jet plane outside the outermost pole, that is the outside the circle of radius equal to the largest magnitude of the pole of xz, means causal non causal के टर्म में भी हम इसको समझ सकते हैं, if xn is a causal, then
the ROC also includes Z is equals to infinite. Okay. Means if you have a right handed sequence, suppose you have a sequence right handed sequence 1 2 3 4 और इसका जब हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे, देन रीजन ऑफ द जेट प्लेन आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल, इसको बेटर समझने के लिए, ये तो चलो सीक्वेंस है, हम सपोज करते हैं कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसका कि जेट ट्रांसफॉर्म इस तरह से आता है, z माइनस 1, z माइनस 2 एंड z माइनस 3। ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जेट प्लेन में हम बनाते हैं। सपोज करते हैं अगर पोल की लोकेशन हम करें तो ये आपका सपोज करो 2 हो गया, ये पोल की लोकेशन आपका 3 हो गया, देन आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल, आउटर मोस्ट पोल क्या है आपका इस एग्जांपल के लिए 3 है, आउटसाइड द सर्किल ऑफ रेडियस इक्वल टू द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल एक्स जेड। ओके, ऐसे केस में अगर आपका कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसका कि जेट ट्रांसफॉर्म इस तरह आता है, तो देन दिस प्रॉपर्टी वी कैन यूज। सिमिलरली उसका अपोजिट, इफ एक्स एन इज लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस, सपोज करते हैं आपका एक सिग्नल एक्स एन है जो कि 1 2 3 4 है, लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस है, और इसका जेट ट्रांसफॉर्म हम वही मान लेते हैं, हम मान रहे हैं, ये हमने निकाला नहीं, इसका जेट ट्रांसफॉर्म भी सेम आता है, z माइनस 1, z माइनस 2, z माइनस 3। हमने मान लिया है कि ये कोई भी सीक्वेंस होता है, जस्ट समझने के लिए हमने माना है इसको, इसका जेट ट्रांसफॉर्म होता है। तो द रीजन जेट प्लेन इनसाइड द इनर मोस्ट नॉन जीरो पोल, इनर मोस्ट नॉन जीरो पोल, अगर हम पोल की बात करें तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, इनर मोस्ट इनसाइड द, तो इस केस में क्या होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो आपका सबसे इनर मोस्ट पोल है उसके इनसाइड में होगा। ओके, सेम ही सीक्वेंस है, आपका जेट ट्रांसफॉर्म सेम आ रहा है, आप देखिए, लेकिन अगर आपका जो सीक्वेंस है यानी एक्स एन टाइम डोमेन में वैल्यू अगर राइट हैंडेड सीक्वेंस है तो आपका जो आउटर मोस्ट पोल है उसके बाहर की तरफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा सीक्वेंस है जो लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस है और उसका आप जेट ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका इनर मोस्ट पोल होगा उसके अंदर की डायरेक्शन में आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। सो दीज आर द overview of the properties. Let's have a implementation of that properties. First one, suppose we have a very initial signal, that is the impulse signal x delta n, and if we put the formula of the jet transform, that we are able to understand the jet transform of delta n will be 1. Okay, and ROC consists the entire jet plane. Of course, it will include z is equals to 0 and z is equals to infinite also. कई ज़्यादातर जगह पे आप देखेंगे या तो 0 या तो इनफाइनाइट एक्सक्लूड होता है, एक्सेप्ट z is equals to 0 एंड z is equals to इनफाइनाइट होता है यहाँ पे, लेकिन ये इंक्लूड होगा डेल्टा एन के। देखिए, अब सपोज करते हैं, सिंपल सी बात है, सिंपल सा, अगर आपका यही डेल्टा एन माइनस 1 हो गया, यानी डेल्टा एन का तो 1 हो गया और डेल्टा एन माइनस 1 हो गया, तो इसका जेट ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं क्या आएगा, जेट की पावर माइनस एन आएगा, डेल्टा एन माइनस 1। अब यहाँ पे हमको समझना है, ये तो हो गया आपका डेल्टा एन, डेल्टा एन, डेल्टा एन माइनस 1 क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा एन माइनस 1, राइट हैंडेड सीक्वेंस। सो तो इसका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये समझने में कोई दिक्कत नहीं। सो द जेट ट्रांसफॉर्म इज वेल डिफाइंड एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 0 वेयर देयर इज ए पोल। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे क्या पोल है, तो आप क्या कहोगे, जेड इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कोई पोल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/z,
तो यहाँ पे पोल की लोकेशन क्या होगी, जेड इक्वल टू 0, इसीलिए कहा गया एट जेड इक्वल टू 0 वेयर देयर इज ए पोल। एक पोल की लोकेशन अगर हम जेड प्लेन में इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे इसकी जेड इक्वल टू 0 पे ये आपका पोल है। तो देयर इज अ जेड ट्रांसफॉर्म एज वेल एज डिफाइंड एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेम यही एग्जाम्पल है, इसी सिग्नल को हमने राइट साइड ना शिफ्ट करके हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया। सो डेल्टा n प्लस 1 इसका जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे, फिर आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दें तो क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं पोल की बात करूँ तो यहाँ आप कोई पोल नहीं, 0 है, जेड इक्वल टू 0 पे 0 है पर पोल नहीं है। यहाँ पे 0 है, हियर वी हैव 0, बट क्योंकि जेड है न्यूमरेटर में कोई जेड की वैल्यू नहीं, तो सो विच इज वेल डिफाइंड फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ एल, सो आरओसी कंसिस्ट द इंटायर जेड प्लेन इंक्लूडिंग जेड इक्वल टू 0। लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखो क्या था, एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0। सो टू बेटर अंडरस्टैंड about the reason of convergence, let's have a look another example which is xn equals to a की power n from 0 to n minus 1 and value of a is greater than 0, very good, and 0 otherwise, means with the help of the observation we can see that this is the, इसकी लेंथ आप देखेंगे फाइनाइट है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके n माइनस 1 तक। अगर आप लेंथ की बात करें कितनी लेंथ है, 0 से n माइनस 1 तक कितना होता है, n होता है। क्यों, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 से 5 तक कितने नंबर ऑफ इंस्टेंट हैं, तो आप बोलोगे 6, 0 1 2 3 4 5 6 इंस्टेंट। उसी तरह 0 से लेके n माइनस 1 तो कितना हो गया लेंथ इसकी, कैपिटल N हो गया। ए की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिस एनालिसिस, एक एक चीज़ें आपको, पहला राइट हैंडेड सीक्वेंस है, दूसरा क्या है आपका फाइनाइट, इसकी लेंथ जो है फाइनाइट है। सो इसका हम जेड ट्रांसफॉर्म देखो, विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द जेड ट्रांसफॉर्म एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एक्स जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड की पावर n माइनस 1, 1 अपॉन जेड की पावर n माइनस 1, जेड की पावर माइनस n माइनस ए की पावर जेड की पावर n कैपिटल N माइनस ए की पावर n अपॉन जेड माइनस ए। अब यहाँ पे समझना है आपको कुछ एनालिसिस बिफोर द एनी कंक्लूजन। अगर मैं पोल की बात करूं तो यहाँ पे देखो पोल एक तो क्या हो गया, जेड इक्वल टू ए हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, कितने नंबर ऑफ पोल्स 0 पे हैं, ये हम बनाते हैं ना, जेड इक्वल टू 0 पे n माइनस 1 पोल है, तो जेड इक्वल टू 0 पे कितने पोल है, नंबर ऑफ पोल्स n माइनस 1। जैसे मान लो यहाँ पे जेड स्क्वायर होता, तो अगर मैं आपसे पूछता कि ओरिजिन पे कितने पोल हैं, तो आप 2 पोल बोलते, जेड इक्वल टू 0 पे 2 पोल है। इसी तरह से जेड की पावर n माइनस 1 है, तो आपके कितने नंबर ऑफ पोल होंगे, n माइनस 1 पोल होंगे। ठीक है, तो आपका तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर आप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, तो जैसे मैंने दो चीजें बताई, आपको बताई कि एक तो लेंथ फाइनाइट लेंथ है, दूसरा क्या है, राइट हैंडेड सीक्वेंस है। सो आपका जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 3 ROC इंक्लूड इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट पॉसिबली द ओरिजिन एंड द इनफाइनाइट, यही तो आपका प्रॉपर्टी 3 कहता है। लेट्स हैव व्हाट इज द प्रॉपर्टी 3, दिस इज द प्रॉपर्टी 3, ये दो, if xn is finite duration then ROC is entire jet plane except z is equals to 0 at infinity। ओके, तो हम प्रॉपर्टी अगर थोड़ा सा ROC की यूज़ करेंगे देन रीज़न ऑफ कन्वर्जेंस हम आसानी से समझ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन इसका थोड़ा सा यहाँ पे ये भी दिया गया है, सिंस xn, एक तो ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 आपने ये कंक्लूड कर लिया कि ROC includes the entire jet plane except the origin and the infinite, and दूसरा xn इक्वल्स टू 0, xn इक्वल्स टू 0 फॉर, मतलब निगेटिव वैल्यू के लिए आपका 0 है, तो आपका क्या होगा, द ROC विल एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। वेरी गुड, चूंकि आपका ये राइट हैंडेड सीक्वेंस है, लेफ्ट हैंड की वैल्यू 0 है, तो ROC विल एक्सटेंड टू इन्फिनिटी
and xn is basically xn is non-zero, and this is the sum positive value of positive value of n. So, the ROC will not include the origin. xn is the positive value. अगर आप n की वैल्यू इसमें कुछ भी रख दें, है ना, देखिए आपका जो एग्जाम्पल है इसमें n की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, तो अकॉर्डिंग टू द n आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी. सो ROC विल नॉट इंक्लूड द ओरिजिन. नेक्स्ट, अगर इफ this is the evident from equation from which we can see that there is a pole of order n is n minus 1. मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ पोल्स जो ओरिजिन पे हैं वो कितने हैं, n minus 1 है. सो द कैपिटल n रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल एट zk इक्वल्स टू a e की पावर j ट्वाइस बाई k अपॉन n. मीन्स k की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 कहाँ तक का होगी, n minus 1 होगी. एंड द रूट्स फॉर k इक्वल्स टू 0 कैंसल द पोल z इक्वल्स टू a. मीन्स अब यहाँ पे समझो, इस वाले इक्वेशन में हम देखते हैं, चूंकि न्यूमरेटर भी एक बार देख लेते हैं. ये जो आपकी वैल्यू आएगी, ये देखो डिफाइन किया गया है a e की पावर j ट्वाइस पाई k बाई n. जहाँ पे अगर हमने लास्ट में इसमें हमने रख दिया इसकी वैल्यू रख दी z इक्वल्स टू a रख दिया. यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे z इक्वल्स टू a रख दिया तो क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस a की पावर n. और चूंकि z की वैल्यू देखो आप क्या कह रहे हो, z इक्वल्स टू a e की पावर j ट्वाइस पाई k बाई n. तो क्या हो जाएगा, एक पोल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, एक पोल आपका इस इक्वेशन पे आप ध्यान से समझ सकते हैं कि एक पोल z माइनस n z माइनस a जो आपका न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, सो यू कैन सी दैट इफ कैपिटल N इक्वल्स टू 16, हमने यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू 16 मानी है और a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में माना है, तो यू कैन सी इफ दिस इज द यूनिटी सर्किल, दिस वन इज द यूनिटी सर्किल एंड n माइनस 1 ऑर्डर पोल. यहाँ पे इतने नंबर ऑफ पोल हैं जो मैंने आपको बताया था, n माइनस a. ये a की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ये लाई करेगी और इसी के ऊपर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हियर वन पोल. तो इतने नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे आप इंडिकेट कर सकते हैं. एंड द ROC कंसिस्ट ऑल वैल्यू ऑफ z एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0. So this is the property. Another example you can see xn इक्वल्स टू b की पावर मॉड n. मॉड की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए होगी. you are able to understand, we can write this xn by b की पावर n u n and b की पावर माइनस n u माइनस n माइनस 1. एंड द z ट्रांसफॉर्म हमको पता है b की पावर n u n का क्या होता है विद द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और b की पावर इसका क्या होता है विद द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. ठीक है, अब यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा, वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा मॉड z इज ग्रेटर देन b. अगर आपके b की वैल्यू ये है तो मॉड z इज ग्रेटर देन b, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे होगा. दूसरा, मॉड z इज लेस देन 1 अपॉन b, ये आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा. अब यहाँ पे कोई कॉमन पार्ट नहीं है. फॉर b इज ग्रेटर देन 1 देयर इज ए नो common ROC. So this sequence will not have Z transform even though the right sided and left sided components do individually. Okay, यहाँ पे अगर दूसरा केस हम सोच के देखें, अगर b की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो इस केस में देखो यानी 0 और 1 के बीच में है, तो b की वैल्यू अगर b इज ग्रेटर देन b तो b की वैल्यू 1 से यहाँ पे आएगी, कहीं ना कहीं 1 से यहाँ पे आएगी, तो ये आउटर वर्ड हो गया यहाँ से. सिमिलरली 1 अपॉन b यहाँ पे कहीं आएगा, इसके बाहर आएगा. क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है, हमको ध्यान में रखना है. इस केस में ये इनर वर्ड हो गया
ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसके अंदर इसके बाहर। सो देखो यहाँ पे क्या हो गया, इस केस के लिए ये आपका एग्जिस्ट करेगा। सो फॉर B is less than 1 the ROC will overlap and thus the jet transform of the composite sequence will be defined like this manner, and this is the final reason of convergence which is showing, and you can understand very easily. Another example by which you can practice, and here you also observe the pole is located at z is equals to 1/3 and z is equals to 2, and after the solving, after the including the concept of region of convergence, you are able to get this region of convergence. So, thank you very much.